across India's social sector. This panel will explore the breadth and depth of mentoring across India's vibrant non-profit landscape, examining how it strengthens the vision and mission of grassroots community-based organizations working to empower young people. It is my pleasure to welcome Manisha Gupta to lead this discussion. Manisha has spent nearly 30 years shaping and chronicling India's social entrepreneurship ecosystem, including a decade at Ashoka, where she rose to India Country Representative and International Director for Youth Programs. In 2009, she founded Startup, an impact accelerator that has seeded and scaled 100+ social ventures across 17 states and trained over 400 cultural and social innovators. She has co-authored 2 books spotlighting transformative stories of social change. A warm welcome to you, Manisha. Now let us welcome our first panelist, Ritesh Gohia. Ritesh is a music-driven social change leader with 15+ years experience shaping youth empowerment and community transformation. A composer, writer, folk singer, and audio engineer, he merges art with social development to uplift marginalized rural and tribal communities. Director of Shido and founder of Folk Recording Studio, he has been honored with the prestigious 2025 Aura Award and Gunj Junoon Award for his impactful contributions to art-led social change. A warm welcome, Ritesh. I now call upon Manisha Ghole. Manisha, founder and secretary of Nav Chetna, hails from a marginalized community in the drought-prone Beed district of Maharashtra. She has transformed her personal struggle into collective empowerment, leading Nav Chetna to reach 55,000+ women across 300 villages through initiatives in microfinance, education, livelihood, healthcare, and gender justice. An Ashoka Fellow and recipient of multiple awards, Manisha continues to prove that women rise. When women rise, entire communities thrive. A very warm welcome to you, Manisha. I would like to next call upon Nakul Singh Sahni. Nakul is an independent documentary filmmaker whose work explores politics, religious strife and violence, human rights, labor rights, and social justice across South Asia with globally screened films such as Immoral Daughters in the Land of Honor. He is the founder of the award-winning Rural North India Media Collective, Chal Chitra Abhiyan, through which he brings international cinema to the hinterlands and trains marginalized communities to make their own films. He is currently directing A Million Churnings, a documentary series on the farmers' movement. A warm welcome to you, Nakul. Over to you, Manisha. Thank you. Hello, yeah. So thank you very much, and I'd like to start with just a round of applause for each one of you who've been just the best audience. You've been listening, participating. So thank you very much for your continued interest in this very, very exciting topic. तो दिस सेशन हम हिंदी और इंग्लिश में करेंगे, तो एवरीबडी ओके विद दैट अगर हम हिंदी में बातचीत करें? यस, नो, हाँ, ना? थोड़े ज़ोर से बोलें? यस, ओके, चलिए. और सेशन शुरू करने के पहले आई जस्ट वांट टू अपोलोजाइज़. तो मैं दिल्ली के गैस चेंबर से यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ पे आई हूँ,
तो उसका सर्दी खांसी लगा हुआ है, so you know I may suddenly start coughing, so please be patient with me. Subeh say from the morning we've really been talking about very critical aspects of mentoring, from the cost, quality, the vision of mentoring, the qualities of a good mentor. और इस सेशन में हम ये देखेंगे हमारे पैनलिस्ट्स के साथ कि ये सारी बड़ी बातें जब ग्रास रूट्स में हिट करती हैं तो मेंटरिंग फिर कैसा दिखता है. How does mentoring really look? What shape and form does it take? What are the highs? What are the lows? When all these things actually, all these aspects of mentoring, you know, when the rubber hits the road, and फिर ट्राइबल एरियाज में डीनोटिफाइड ट्राइब्स के साथ वेस्टर्न यूपी के बहुत ही कम्युनली वॉलेटाइल एरियाज में मेंटरिंग कैसे दिखता है. सो बिफोर आई स्टार्ट, यू नो आवर मोस्ट अमेजिंग पैनलिस्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, but I want to ask the audience a question. And there are no answers, there are no gifts for the correct answers, so feel free to give as many incorrect answers as possible. How many registered NGOs are there in India right now? Ye grassroots NGOs, civil society. How many registered NGOs are there right now in India? Wrong answers, most welcome. 3 million. Who said that? Well, whoever said, okay, all right, okay. Any other guesses? 3 million. Between 5 and 10 lakhs, okay. That would be after the FCRA. Anyways, 18 lakhs. Okay, that's very specific, 18 lakhs. Okay, so our friend there, you know, exactly spot on, 3 million. 3 million, or anywhere between 3 million and 3.7 million registered NGOs. और ये 3.7 million registered NGOs में कितने बिल्कुल grassroots में काम कर रहे हैं? What percentage? What percentage of the 3.3 to 3.7 million NGOs are actually working at the grassroots? Sorry? I can't hear. 5% are working at the grassroots. Okay, cool. Yeah, 75%. Yeah, that was a great one. So, of the 3 million NGOs in the country, about 74% are working in the grassroots. Of the 74%, almost 70% are working in rural areas. Right? So when we sort of really talk of what Professor Gowda said in the morning, a whole movement of millions of mentors, there is a big possibility that we will be able to build that movement focusing on grassroots NGOs in rural areas. If you just look at all the आंकड़े अगर आप देखें और वो किस तरह से आंकड़े मिक्स कर रहे हैं, तो उसी के लेवल पर अभी हम बात करेंगे कि ग्रासरूट्स में राइट मेंटरशिप कैसे दिखता है. हम मनीषा, आप बीड़ के, महाराष्ट्र के बिल्कुल क्लाइमेट क्राइसिस हिट एरिया में बीड़ में काम करती हैं, जहां 20 साल से अनस्टॉपेबल ड्राउट था और अचानक से फ्लड आ गया. और वहाँ पे आपने डीनोटिफाइड ट्राइब्स की महिलाएं, सिंगल दलित बहुजन महिलाओं को आपने एक मेंटरिंग के मूवमेंट में ऑर्गेनाइज किया है. 300 मेंटर्स 300 गाँव में 30,000 महिलाओं को मेंटरिंग कर रही हैं, है ना. तो आप वो कर रहे हैं. तो हमें आप ये बताइए कि आपकी जो पूरी मेंटरिंग की जो प्रक्रिया है, जो पूरा जो प्रोसेस है, वो किस तरह से जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव हुआ है, वो हम जानते हैं क्योंकि वो आपके पास इम्पैक्ट भी है. बट एक निजी लेवल पर बताइए कि आपने कब मेंटरिंग, आपका खुद का रिश्ता मेंटरिंग से कब बना और आपने फिर उसको किस तरह से मॉडल में बांधा. नमस्ते सबको. सच में अगर पूछा जाए तो अभी ग्रास रूट की जब बात आती है तो खुर्चियाँ खाली होने लगती है. सेम वैसे ही हुआ है. जब ग्रास रूट की बात हम लोग कर रहे हैं तो
काफ़ी सारी कुर्सियाँ भी खाली लग रही है, बट जो लोग यहाँ पे रुके हैं, ठहरे हैं, बस उतने ही काफ़ी है जो ग्रास रूट में महिलाओं में, बच्चों में, या ग्रास रूट की जो सिचुएशन है उसमें बदलाव लाने के लिए यही लोग हमें काफ़ी है। इतने भी लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया और अच्छी तरह से ग्रास रूट लेवल पे हम लोग बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैं बीड डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोलूँगी, जहाँ से मैं आई हूँ। बीड डिस्ट्रिक्ट एक महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे शुगर केन कटर्स का डिस्ट्रिक्ट बोल के उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान है। उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान यूट्रस निकालने वाला डिस्ट्रिक्ट बोल के उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान है। बेटियों को पेट में मारने वाला डिस्ट्रिक्ट बोल के उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान है। अभी कोविड के बाद ढाबे वाला डिस्ट्रिक्ट, यानी जहाँ पे महिलाएं अपना शरीर बेचती है, वो डिस्ट्रिक्ट बोल के भी ये डिस्ट्रिक्ट पहचाना जाता है। ड्राउट पूर्ण एरिया बोल के भी ये डिस्ट्रिक्ट पहचाना जाता है। और अभी ड्राउट होने के कारण पानी बहुत ज़मीन में नीचे गया है, तो किडनी स्टोन वाला डिस्ट्रिक्ट बोल के भी इस डिस्ट्रिक्ट की पहचान है। वहाँ से हम लोग आते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी ही नहीं है, अच्छी भी चीज़ें हैं। जहाँ पे हम लोग काम करते हैं तो हमारी तरह अच्छे भी लोग वहाँ पे है। तो जब 2016 की बात है, CII फाउंडेशन का वुमेन एग्जाम्पलर का अवार्ड हमें मिला था। उसी टाइम शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन हम नहीं भूले। आपने ही हमारा मेंटरिंग का ट्रेनिंग करवाया था। उसके पहले हम लोगों ने जहाँ पे एक 30 विलेजेस में और 2-3-4 लोग टीम मेंबर थे, उनके साथ हम लोग काम कर रहे थे। तो 2016 में जब आपने मेंटरिंग करवाया, उसके पहले हम लोग ट्रेनिंग करवाते थे, महिलाओं की मीटिंग करवाते थे, स्टाफ के साथ बात करते थे। बट जब इन्होंने हमारा ट्रेनिंग किया तो पहली बार 2016 में मैंने मेंटरिंग शब्द को सुना। तब तक हम लोगों ने मेंटरिंग शब्द को सुना भी नहीं था। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पे मेंटरिंग का खुद ट्रेनिंग करवाया। और इन स्टार्टअप को रिक्वेस्ट करने के बाद 6 महीने और उन्होंने मेरा खुद का मेंटरिंग का ट्रेनिंग बढ़ाया। और 6 महीने में आपके साथ थी, बहुत कुछ सीखा मैंने उस टाइम। और फिर मैंने कहीं जाके अपनी टीम का 7-8 टीम का ट्रेनिंग करवाया। ये 7-8 टीम ने 40 गांव में जो हमारी लीडर महिलाएं थी, जो काम कर रही थी, उनका ट्रेनिंग किया। तो कहीं जाके हमारा काम अभी 300 विलेजेस में हम लोग काम कर रहे हैं। 300 महिला सखी को हम लोगों ने 3 साल का मेंटरिंग का ट्रेनिंग करवाया। तो 300 अभी महिला सखी है जो पूरे 30,000 महिलाओं का मेंटरिंग का ट्रेनिंग कर रही है। तो इस तरह से जो हमारा ट्रेनिंग का शुरुआत था, तो आपने ही शुरू किया था मेंटरिंग का, अब जाके 30,000 महिलाओं तक रुका है। नेक्स्ट 3 ईयर का हमारा प्लान है कि हम 1 लाख लोगों तक पहुंचने वाले हैं मेंटरिंग लेके। मेंटरिंग की बात करें, ट्रेनिंग और मेंटरिंग में बहुत फ़र्क होता है। जहाँ पे ट्रेनिंग में टेक्निकल चीज़ों का पता लगता है, ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ मेंटरिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे हाँ, जैसे मैंने अभी बोला कि शुगर केन कटर्स के लिए महिलाएं जाती है बहुत, वो पश्चिम महाराष्ट्र में जाती है, अदर राज्यों में वो गन्ना काटने के लिए जाती है। बट जब वो जाती है और हम लोगों ने उनको बोला कि आप अपना बिजनेस शुरू करो, ट्रेनिंग भी दिया बिजनेस का, पर बट नहीं हो पाया ट्रेनिंग उनका। और बिजनेस भी ट्रेनिंग हो गया, बट बिजनेस शुरू नहीं हो पाया उनका। तो जब हम लोगों ने मेंटरिंग शुरू किया तो आप सोच नहीं पाएंगे कि 7,000 महिलाओं ने अपना बिजनेस शुरू किया, और जहाँ पे महिलाओं का माइग्रेशन सही तरीके से रुक गया। अभी मैं बात कर रही थी कि यूट्रस निकालने वाला डिस्ट्रिक्ट बोल के पहचाना जाता है, जहाँ पे बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में महिलाओं की शादी होती है। तो जब महिलाओं की शादी कम उम्र में होती है और गन्ना काटने की बात आती है तो बहुत वेट उठाना पड़ता है। कम उम्र में माँ बनने का उस पे वो आ जाता है, तो ब्लडिंग होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, पेट में दर्द होता है, ये सारी चीज़ों के कारण यूट्रस निकाला जाता है। बट ये सारी चीज़ें जब होती है, उसका वाइट डिस्चार्ज या ब्लडिंग होता है, तो वो अपने डॉक्टर को बताने में घबराती है। एक डर लगता है उसको कि ये सारी चीज़ें हम डॉक्टर के साथ कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे बताएं। बट जब हम लोग मेंटरिंग करते हैं तो वो सारी चीज़ें वो लोग हमें बताते हैं, और डॉक्टर को कैसे बताना है वो सीख जाती है, हम लोग उनको सिखाते नहीं है। बहुत बार ऐसे लगता है हमें कि हम मेंटर कर रहे हैं, किसी मेंटी को मेंटर कर रहे हैं, लेकिन हम तो एक बहुत बड़े मेंटर है। लेकिन उस मेंटी से जो हम कुछ सीखते हैं तो वो हम दोनों भी मेंटर होते हैं। हम सारी चीज़ें
उनको बताते नहीं है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, उससे बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीख जाते हैं। जैसे आपने और हम में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमने बहुत कुछ देखा है, हमने बहुत कुछ झेला है, जैसे आपने नहीं देखा है। तो वो सारी सिचुएशन में किस तरह का अपना डर मन में दबा के रखना है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैं खुद एक लेडी का मेंटरिंग कर रही थी। तो जब उसका मेंटरिंग कर रही थी तो वो सिर्फ रो रही थी। जब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, वो बहुत रो रही थी। लेकिन 3 महीने बाद मुझे पता चला कि वो इसीलिए रो रही थी कि जब वो गन्ना काटने के लिए गई थी तो 7 बार उस पर रेप हुआ था, और वो अपने हस्बैंड को भी नहीं बोल पाई थी कि मुझ पे 7 बार रेप हुआ है। तो ये ताकत, ये स्ट्रेंथ अपने मेंटरिंग में है। तो वो जब 7 बार रेप हुआ ये बोली तो उसका दिल हल्का हुआ। उसको लगा कि कोई तो है मेरा सुनने वाला। मतलब हम लोग अभी तक ये कह रहे थे कि सुनना बहुत ज़रूरी है, बट उसको ये एहसास भी होना ज़रूरी है कि वो हमारा कोई सुनने वाला है, और हमसे कोई मतलब जो सुनेगा या इस तरह की चीज़ें वो महिलाएं हमें बताएगी तो हम किसी और के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। ये भरोसे का रिलेशन, एक विश्वास का रिलेशन भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मेंटरशिप में आ गई और ये मेंटरिंग करना हम लोगों ने शुरू किया, तो आपको भरोसा नहीं होगा, हम लोग अभी उसके बलबूते पे अभी 300 विलेजेस में काम कर रहे हैं, 30,000 महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है 8 डिस्ट्रिक्ट, वो 8 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी 120 लोगों की टीम हमारे साथ है। तो Thank you, यही मनीषा। कहना चाहती हूँ मैं। थैंक यू। तो आपने बहुत सारी चीज़ें बोली जो अभी सब कोई हम अपन प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी बोला कि ट्रेनिंग से एक हद तक ही आपका मूवमेंट आगे जा रहा था, लेकिन जब ट्रेनिंग को आपने थोड़े से साइड में रखा और मेंटरिंग को पूरा आगे ले गए, तो जहाँ पे बिजनेसेस खड़े नहीं हो रहे थे 7,000 बिजनेसेस खड़े हुए। तो मेंटरिंग की ये पावर आपने देखी है, सेफ एक्टिव लिसनिंग, कंपैशन बेस्ड मेंटरशिप, बट ऑल्सो मेंटरिंग का जो पावर है उसको आपने बहुत बढ़िया से, और वो जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव पावर जो हम इस सेशन के पहले बात कर रहे थे, तो इस पर और बात करेंगे। बट इसी को लेते हुए रितेश, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एमपी और छत्तीसगढ़ के बहुत ही डिफ़िकल्ट ट्राइबल इलाकों में इलाके में आप काम करते हैं, और आप कह रहे थे कि इस सेशन के लिए जब आप रिसर्च कर रहे थे तो आपने एक लिस्ट बनाया, और वो लिस्ट में निकला कि आपने खुद पर्सनली 412 लोग ट्राइबल यूथ को मेंटर किया है। इसके पहले वो नंबर आपके पास था नहीं। और आपकी संस्था शेडो ने ट्राइबल यूथ को लीडरशिप और एक्टिव सिटीजनशिप के एक जर्नी में डाला है मेंटरिंग के थ्रू। तो आप ये बताइए कि आप भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, ज़्यादातर मूवमेंट और प्रोजेक्ट्स दोनों शेडो में चलता है, बट मूवमेंट का फ्लो ज़्यादा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने मेंटरिंग के बारे में हाल ही में आपने सोचा है, समझा है, और जिसने आपको खूब सरप्राइज किया हो? Okay, thank you. So I may start with the what is the difference between the mentoring, supervision. ये एक्चुअल में यही एक सबसे की पॉइंट था। तो प्रोफेशनली आई स्टार्ट विद द मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिसर। या तो अब उस समय हमें नहीं पता था, और हरदा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करता मेंटरिंग उस तरह से, और शब्दों का एक बड़ा टाइम ड्यूरेशन होता है, वो उनका होना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो नहीं होंगे तो फिर उससे लर्निंग। तो हमें पहले मेंटरिंग नहीं पता था, हमें ये पता था कुछ बात करते हैं, हम को क्रिएट करते हैं यूथ के साथ और कुछ स्पेस नर्चर करते हैं जिससे कुछ होता है। पर जब हमें मेंटरिंग मिली तो एक आइडिया लगा कि मेंटरिंग बेसिकली बियॉन्ड द टीचिंग, सुपरविज़न, पुलिसिंग, इससे हट के कोई चीज़ है, और हमें एक्चुअल में नहीं पता था साइंस उस तरह से कि कुछ को क्रिएट करना है, कुछ नर्चर करना है। बट ट्राइबल के साथ हमें बहुत चैलेंज हुआ, क्योंकि वहाँ पे ना तो वो शब्द एग्जिस्ट करता है और ना वो को लर्निंग वाला स्पेस बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि ट्राइबल यूथ के साथ मोस्टली हम देखते हैं ऑर्डर मोड में बात चलती है, या तो वो हमसे कहते हैं कि ऐसा करना है या हम कहते हैं कैसे करना है। ये हमें बहुत समय बाद एक आइडिया लगा कि स्पेस शायद क्यूरेट करना पड़ेगा, कुछ क्रिएट करना पड़ेगा
जहाँ पे एक तो हम को क्रिएट करें, और को क्रिएशन में कोलैबोरेशन की जब बात आती है तो वो बेसिकली कोलैबोरेशन मेंटरिंग में लिबरेशन है, श्रम लगता है, लेबर है बेसिकली वो, दो लोगों के बीच में बातचीत। और जब इसमें बहुत डिटेल में गए तब पता चला कि बेसिकली डायलॉग काम कर रहा है। और डायलॉग को जब हमने ओपन करा तो हमें पता चला कि डायलॉग में एम्पैथी उस लेवल पे ले जाना जब वो फील करे कि हम उसको न केवल सुन रहे हैं बल्कि हम उसकी तरह एक्ट भी कर रहे हैं, उसके स्पेस में बैठ के सुन रहे हैं। तो ये बहुत कीन हमें जब ऑब्जर्वेशन हमें मिले तो हमें लगा मेंटरिंग इसके अलावा बहुत कुछ है। मेंटरिंग सिर्फ ये कुछ मतलब एक जॉर्गन नहीं है, ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है शायद जो लोगों को साथ लाने में, को क्रिएट करने में मदद करती है। तो वो कुछ इनबिल्ट था। कुछ जब हमारी मेंटरिंग हुई तो हमें आइडिया लगा कि अच्छा मेंटरिंग प्रॉम्प्ट पे भी चलती है, एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे आपको, आप कुछ कोशिश करेंगे। तो जब ट्राइबल यूथ के साथ ये धीरे धीरे करा तो हमें समझ में आया कि हमारा ग्रुप बढ़ रहा है, क्योंकि यूथ के पास स्पेस नहीं था अपनी बात कहने का। अपने क्योंकि जब आप पहली बार किसी से पूछते हैं, मेरे से जब पहली बार पूछा कि क्या करना चाहते हो, तो ऐसा लगता है कि ड्रीम को आपको कोई स्ट्रेंथ मिली, कोई पावर मिली कि कोई पूछ रहा है क्या करना चाहते हो। जब आप कहते हैं कि ये करने का मन है, आर्ट में कुछ करना है, तो वो कहते हैं कि क्या करना चाहते हो, आर्ट में भी थोड़ा सोच के बताओ। फिर जब आप लिखते हो, मेंटरिंग वहीं से चालू हो जाती है और आपको पता नहीं होता कि ये मेंटरिंग हो रही है। और जब आप ये सीखते हो तो फिर आप भी उसी तरह से अपने और नए मॉडल्स निकालते हो। तो वहाँ से आइडिया लगा। तो बाद में जब हम 10 साल काम करके देखते हैं तो 5-6 बैंड तैयार हैं, वो उनका लाइवलीहुड चल रहा है उससे। कुछ लोग अच्छे म्यूजिशियन हैं, कुछ अच्छे एक्टिविस्ट हैं, कुछ बहुत एडवोकेसी बहुत अच्छी कर रहे हैं, कुछ की संस्थाएं हैं। तो इससे आइडिया लगता है कि वो सिर्फ फ्रेम नहीं है, वो बहुत रिलेशन है मतलब। और वो रिश्ता जो है वो इतना ऑर्गेनिक है कि उसे आपको फ्रेम में भी देखना जरूरी है। लाइक जैसे अभी कहा कि हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देख रहे थे कि इनपुट आउटपुट और आउटकम में भी देखना पड़ेगा, उसे उस फ्रेम में भी देखना जरूरी है और बियॉन्ड द फ्रेम भी आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है फिर, क्योंकि आप फ्रेम में देख रहे हैं तो यूथ फ्रेम में नहीं देख रहा है, और आप विदाउट फ्रेम देख रहे हैं तो रिसोर्स जहां से आ रहा है वो फ्रेम उसके लिए वो काम नहीं करता है। तो वो मिडिल पाथ हमने निकालने की कोशिश करी है। और प्रोजेक्ट्स जो आप चलाते हैं वो 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो वो 1-2 साल में आपके मेंटरिंग हो जाती है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है किसी को लगे भी कि शायद ये काम कर, मेंटरिंग एक्चुअल में 1 to 10 ईयर जर्नी है। ये इस तरह से है पर मेंटी 1 to 10 पर years मेंटी, per mentee. क्योंकि प्रोजेक्ट में मेंटरिंग खत्म हो जाती है, पर आफ्टर द प्रोजेक्ट आपका एक रिश्ता बहुत लंबा चलता है। लाइक अभिषेक हैं, वो 5 साल पहले मिले थे। अभी वो ना केवल मैं उन्हें बता रहा हूँ बल्कि वो मुझे मेरे प्रोग्राम में बता रहे हैं कि तुम्हें ये करने की जरूरत है और ये करने की जरूरत है और हमें इस स्ट्रक्चर में अब जाना चाहिए। तो अब मेंटरिंग एक पॉइंट पे हम कर रहे थे, अभी वो एक्चुअल में रिवर्स मेंटरिंग जिसको हम कई सालों से कह रहे हैं कि वो होना जरूरी है, वो तो एंडलेस है। मुझे लगता है उसको हम टाइमलाइन में डिफाइन नहीं कर, मतलब हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। अभी हो सकता है उसका कुछ टाइमलाइन होता हो, पर मेरे हिसाब से वो बहुत लंबा है, रिश्ता है, क्योंकि वो एक तरह से। थैंक यू रितेश। यहाँ पे आपने एक बहुत अहम बात कही कि प्रोजेक्ट के टाइमलाइंस चलते रहेंगे, और लेकिन प्रोजेक्ट के टाइमलाइन तक आपकी मेंटरिंग की रिश्ते सीमित नहीं रहते। तो प्रोजेक्ट आते हैं जाते हैं, लेकिन वो एक रिश्ता कायम हो जाता है। एंड टिल द टाइम आपको लगता है कि वो रिवर्स मेंटरिंग ना हो, वो मेंटरिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट on both sides, right? Especially in the areas, right? So that's a good way for us to come to you, Nakul. तो आप भी कह रहे थे कि जिस तरह की मेंटरिंग में आप इंगेज्ड हुए हैं उसमें आपने सोचा था कि 5 से 7 साल में आपके मेंटीज तैयार हो जाएंगे, लीडर्स बन जाएंगे, बट उसमें 10 से 11 साल लगा। तो बट इफ़ यू कैन जस्ट सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर अस एंड टेल अस who are the kind of people you have mentored, and just you know the setting जहाँ आप चलचित्र अभियान कर रहे हैं of Kandla, and the young people that you're mentoring. If you can just set that context, and then we'll come to the next question. Well, in terms of context, then can I just sort of go back to why and where we started? And yeah, Hindi, English, anything? Okay.
Um, well, in 2013, there was a large religious riot. There were large religious riots in western Uttar Pradesh and districts of Muzaffarnagar and Shamli. Largely in these two districts, but it did sort of have ripple effects elsewhere in West UP as well. And about 100 people were killed in these riots, and about 60,000 people were displaced who lost their homes to this mass violence. Um, and I was working on a film on the sectarian violence. It was called Muzaffarnagar Baqi Hai. And while working on the film, one of the things that we realized is that the role that both the social media and even a large section of the local mainstream media had played in vitiating the atmosphere. A lot of fake news and a lot of sort of communal twists were given to very localized incidents and amplifying those incidents and making them much bigger than they actually were. And all of that had played a very, very big role in vitiating the atmosphere. And unfortunately, there was no counter to any of this. And a lot of local activists in the area felt the need for an alternative sort of media, cultural organization. So, I mean, Chalchitra Abhiyan was really born out of that vacuum. And so one of the things that decided was that after the film gets over, to sort of try and situate myself in West UP itself, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली में बैठे हो और कभी दंगा हुआ तो फिर दंगे के बाद आप respond कर रहे हो और अपनी कैमरा लेकर पहुंच रहे हो. लेकिन to be sort of in the midst of the churnings of the area, and very importantly then not just to counter the communal or the almost this very vicious bile that was being produced by the mainstream media, and a lot more now, but also to sort of provide an alternative in the very structures, not just in the content, but in the very structures of the organization. So to create a bottom-up media, to create and invert the gaze of the media. How does that done? That then you hand over the tools of production, dissemination to the most marginalized youth of the society, right? And that's where I think, well, Ritesh, thanks to Ritesh, I find the courage to say this, that I've just picked up the word mentorship today and realized that some of what we've been doing is mentorship. So, but that's where I think mentorship began, when I began to train a lot of youth from West UP, from very marginalized communities, to start telling their own stories through video, to start telling their own stories through films, and various kinds of video production, documentary films, news features, even now interviews, vox pops, all of that. And we have this growing, flourishing, hyper-local West UP channel today called Chalchitra Abhiyan, which then, the process of mentorship has been such where you said, I thought of it as 4 to 5 years, it's already been almost 10 years now. And I see it going on for another 10 years maybe, or I think it's a sort of a lifelong commitment. But I think mentorship has also been a very two-way process, but I have learned a lot in the process from the people I have been supposedly mentoring, right? And I think it's been a very dialectical two-way process. And there's a whole range of other things that we've started doing now in West UP, which we can talk about subsequently. Yeah. Thank you. So just for just a clarification, Nakul, have you been providing young people technical training on how to run a great hyper-local media channel, which tells stories of young people in their own voice? Have you been giving them training? Or is it mentorship? Can you just distinguish that for us and for our audience? Wow, okay. In the sense that I don't think it's just technical training, right? Yes, technical training in terms of, and not just me, but we've been getting in people from experts or professionals in the fields, some incredibly good camera people, storytellers, journalists to come and conduct workshops as well. But it's also very important to be able to situate our work in our context, right? In our political context, in our socio-economic context. I also feel that somewhere mentorship has to weave in constructs of social inequalities of
of structural imbalances in our society if it has to be comprehensive and transformational in nature. It cannot overlook these realities, otherwise I think it just becomes, I think it will become touch and go, right? So the idea is, yes, so when you're saying mentorship, really build collectively on a political consciousness in the area, and our work is very strongly situated in that context, right? So when you're saying, is it just technical knowledge? No, I don't think that can be separated from the socio-political economic constructs, like, you know, Ritesh and the work you're doing with music over there, right? Or the work we're doing with films. It cannot be divorced from that. And I think both are, there's a very strong dialectical relationship between the two. One can't sidestep either the technical finesse or the content and the depth in that content that has to reflect in our videos. Right, absolutely. And I think what's very powerful about Nakul's work, and I can share that with the audience, is that while we were speaking about the goals of mentorship programs, so some mentorship programs are about, you know, well-being, they are about livelihoods, they are about employability, but leadership, for Manisha, आपके लिए भी आपका पूरा mentorship program gender transformative leadership के लिए के focus में है. So with Nakul's mentorship program with about 100 youth from very, very structurally excluded communities, आपकी mentorship is really about strengthening political consciousness and identity building. And that is really deep and complex kind of mentorship, which is very long term. And we'll come back to that later. So I'm sure all of you have many questions. आपके ज़हन में काफ़ी सवाल आ रहे होंगे. तो please अपने सवाल 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रोकिए और एक हम जल्दी ही एक rapid fire या question करने वाले हैं आप तीनों से, and then we'll halt for audience interaction. तो मनीषा, आपने बोला कि आपके काफ़ी बड़े गोल्स हैं 1 लाख महिलाओं तक और यूथ महिलाओं तक जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स और दलित बहुजन समाज से हैं, वहाँ तक आपको मेंटरिंग ले जाना है ना? लेकिन अभी हम लोग सुबह से सुन रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की बात, स्केल की बात, तो ये सब होगा कैसे? मतलब ये स्केल कैसे आप करेंगी? लोग कह रहे थे कि गवर्नमेंट के थ्रू ही स्केल हो सकता है, तो हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट स्केलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी? क्योंकि आप तो बहुत दूर, बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर में काम करती हैं, तो कैसे होगा ये? और ये सारा कुछ ऑर्गेनिक ही है कि क्या है? थोड़ा बताइए और जल्दी बताइएगा. जी, ठीक है. मुझे ये बोलना है कि हम इंटीरियर में काम कर रहे हैं, एक बात सही है, लेकिन इंटीरियर में से अभी गवर्नमेंट ने हमारी 350 महिलाएं ऐसी उठाई है जहाँ पे उनको सखी मेंटर्स बोल के गवर्नमेंट लेवल पे चुना गया है और सरकार उनको पे कर रही है. तो अब हमें इंटीरियर और ग्रास रूट कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. हम तो आप तक पहुँच चुके हैं, हम गवर्नमेंट तक पहुँच चुके हैं, और जब हम कोई आवाज़ देंगे तो गवर्नमेंट तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा 1, 2, 3 महिलाओं का आवाज़ नहीं है, 30,000 महिलाओं का आवाज़ है. अभी हम 8 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, तो हम सरकार को जैसे बोलते हैं ना, साम दाम दंडभेद सब कुछ हम यूज़ करते हैं. जैसे खाली मेंटरशिप ही नहीं यूज़ करते, सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं और सुनने में उनको मजबूर कर देते हैं. तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं. और दूसरी एक है कि हम लोग जब एक साथ आएंगे, अभी जिस डिस्कशन में हम बैठे जहाँ पे हमें एक व्यासपीठ दिया है सबने, तो हम लोग क्यों नहीं एक साथ मिलके एक आवाज़ बनाते हैं जहाँ पे हमारी महिलाएं आप सबको आवाज़ दे रही है, आपको उनकी आवाज़ को वो देना है और साथ में सरकार के साथ काम करना है. जैसे जहाँ पे मैंने बोला कि यूट्रेस निकालने वाला डिस्ट्रिक्ट बोल के पहचाना जाता है, तो यूट्रेस निकालने के लिए सिर्फ बीड डिस्ट्रिक्ट के लिए गवर्नमेंट को हमारे महिलाओं ने इतना आवाज़ बड़ा किया कि गवर्नमेंट को GR पास करना पड़ा और बीड डिस्ट्रिक्ट में किसी महिला का यूट्रेस नहीं निकाला जाएगा, ऐसा कानून बनाया गया. तो क्यों नहीं हम सरकार तक, गवर्नमेंट तक पहुंच सकते? तो फिर आप ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं कि मेंटरिंग एक स्किल भी हो सकता है. जी. जो रूरल महिलाएं, जो ग्रामीण महिलाएं
अगर उसमें, और वी वर टॉकिंग ऑल्सो अबाउट सर्टिफिकेशन एंड क्वालिटी, है ना, तो अगर ग्रामीण महिलाएं मेंटरिंग का स्किल लें तो गवर्नमेंट की मेंटर्स के तरह भी जी, वो जी। लाइवलीहुड्स, एक लाइवलीहुड्स का जरिया बन सकता है। जी है ना? बिल्कुल। और दूसरी एक बात है, हाँ, सॉरी बोलिए, मैं बोलिए। आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट एक बात है कि जहाँ पे मेंटरशिप हम लोगों ने शुरू की, आज हमारी महिला सरपंच है, आज हमारी महिला ग्राम पंचायत सदस्य है, आज हमारी महिला, महाराष्ट्र में इलेक्शन शुरू हुआ है अभी, तो हमारी महिला जेडपी मेंबर तक बनने के लिए तैयार है। हम पीछे हैं, हम नहीं उनके साथ, हम पॉलिटिकल लोग नहीं है, बट हमारी महिलाएं क्यों नहीं पॉलिटिकल हो सकती, हमारी महिलाएं क्यों नहीं जा सकती। और ये बात है कि वो NT-DNT से है, दलित परिवार से है, और सब गांव उनका सुन रहा है। और हमारे इलेक्शन में 1 रुपया भी नहीं लगता, पैसे नहीं लगते इलेक्शन लड़ने के लिए। हमारी महिलाएं इलेक्शन लड़ रही है, और हमें ये भरोसा है कि इस बार इस जो झड़पी का इलेक्शन लगा है, 100 महिलाओं को चुन के ही लाना, ऐसे हमारे महिलाओं ने तय किया है। चलिए, तो वो लोग उनका मेंटर कर रहे हैं, हम उसमें नहीं है। तो 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 ये ऑब्वियसली आपके मेंटरिंग से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये कहीं पे लिखित है कि अनस्ट्रक्चर्ड है, कहीं पे नहीं। कोडिफाइड है, क्या शुरू- क्या है, कहाँ कहीं वो करिकुलम है आपके पास कि, बताइए। जी, शुरू शुरू में हम लोगों ने जब शुरू किया था तो कहीं पे लिखित वगैरह नहीं था, और बाद में ऐसे लगा कि अगर गवर्नमेंट को कुछ देना है, किसी को और कुछ बताना है, या हमें उसके लिए फंड रेजिंग करना है, तो कहीं पे लिखा होना बहुत ज़रूरी है, और उसको स्ट्रक्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने हमारा थोड़ा सा रास्ता बदल दिया और लिखना शुरू किया। और हम यहाँ पे नहीं रुके कि यार ठीक है, हमें इंग्लिश नहीं आती, हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो हमने आपके जैसे लोग हायर किए और उनको लिखने के लिए बोल दिया और लिखना शुरू किया। जो हमारा मॉडल अभी लिखा हुआ है, स्ट्रक्चराइज है, तो सारी चीज़ों को लेके हम लोग आगे चलते हैं। वाह, थैंक यू वेरी मच। चलिए मनीषा जी, रितेश आप बताइए कि हम सुबह से क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ट्राइबल यूथ के साथ आप बात, तो आप और आपने खुद 412 ट्राइबल यूथ को मेंटर किया, तो क्या आपको लगता है कि आप क्वालिटी मेंटर हैं? और क्वालिटी को आप किस तरह से समझते हैं? है कि नहीं है आप क्वालिटी मेंटर? हाँ, मुझे अभी विश्वास दिलाया कि मैं क्वालिटी मेंटर हूँ लोगों ने। अच्छा, आज सुबह से आपको मुझे लग पहले रहा है नहीं क्या? पता था। चलिए, हाँ, तो मुझे ये कहा बैच गया भी मिल कि गया। मैनुअल डिजाइन कर दो, एक मेंटरिंग स्टाइल तुम्हारा जैसा है उस तरह का। तो मैंने पूछा कि मुझे बता दीजिए आप मेरा स्टाइल कैसा है, कि मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा जैसा ऑर्गेनिक जैसे तुम मेंटरिंग करते हो। तो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए कि हिमांशु कैसे बैंड बना लिया और वो पूरे देश में शो कर रहा है, और स्तुति कैसे IAS बन गई। तो म्यूजिक बैंड्स एक आपके म्यूजिक बैंड mentors था, कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, कोई किसी का कुछ, तो ऐसा मल्टीपल टाइप के लोग थे। तो मैंने कहा कि मैंने घर से स्टार्ट किया एक्चुअल में। मैंने अपनी मेंटरिंग करी, कई बार मुझे मम्मी की मेंटरिंग भी करनी नहीं, पड़ी। आपने अपनी मेंटरिंग कर ली? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि मैनुअल मतलब मैं क्वालिटी मेंटर हूँ या नहीं हूँ, तो मैं उसका आंसर इस तरह से दे रहा हूँ। एक तो सबसे कठिन काम है, आप घर से शुरू करते हैं, वो नहीं होता है। कोई भी ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस घर में बनाते हैं तो वो नहीं होता है। कोई भी प्रोसेस आप घर से शुरू करते हैं और वो नहीं होती, और अगर आपने वहाँ कर ली और वहाँ कुछ आगे बढ़ गए, थोड़ा पुश हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। तो घर की प्रोसेस से मुझे समझ में आया कि मैं छोटे भाई या अपने बड़े भाई या मम्मी या मेरे साथ जो डायलॉग हो रहा है, वहाँ जो मैं काम कर रहा हूँ वो थोड़ा काम कर रहा है। तो उससे मुझे आइडिया लगा। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ क्वालिटी है जो जो मेरे पास है, कुछ मुझे सीखनी है अभी और। अच्छा, और नकुल आप बताइए, हु इज पेइंग फॉर योर वेरी कॉम्प्लेक्स मेंटोरिंग प्रोग्राम? ये पूरी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और आइडेंटिटी को जो स्ट्रेंथन करने की मेंटरिंग है, तो आप कौन पे कर रहा है? हु इज पेइंग फॉर इट? I sold a kidney last year. I'm hoping it regrows, sell it again. No, but on a serious note, they're intact. But no, it's been very difficult to raise money. Um, for reasons I think most people in the audience are familiar with. Uh, some of us are funder untouchable today. Some fellowships have really helped. Some small grants here and there have really helped. We also do some amount of crowdfunding.
I think what's also fascinating at one level is that also one of the two other things that we're also doing very regularly along with our videos is one, we organize a lot of, on a week, I think every second or third day we have screenings, open air film screenings in villages around. Our office is situated in a township called Kandla, and in about 20-25 villages around Kandla, we have regular film screenings on a whole range of genres, national, international, films, documentaries, feature films, all of that, where we try and then have discussions about the films after the screenings. And also we run a library now, a children's library, which is a sort of very vibrant cultural center, which has also become a very important space for young women to find a space for expression, because there was talk about loitering and the need to loiter, and those spaces just don't exist for young women or women of any age group in where we work. So it's also become that lovely space, you know. Because of this kind of work also, and also because of a channel, a lot of people locally now, after a screening, will just hand over a note and walk away, you know. So that gives me confidence and gives us confidence in Chalchitra Abhiyan that it may not come to the kidney finally, you know, and we'll pull it through. Yes. I do hope that, you know, you don't have to go to those measures. But just on that note, I'm going to invite the audience to ask questions. I think we have about 5 minutes, so we can take a couple of questions, yeah, before we summarize. Yes, Arundhati. No, thank you. I think that you've brought the energy back into the room. So thank you all so much. I'm curious about from आप जहाँ पे हैं, आपकी जो नज़रिया है, you can see it's a vantage point, and I think it's refreshing to see how honest it is. Right? Sometimes जैसे आप बता रहे हैं कि conversations बहुत एक formalized हो जाता है कि grant के लिए क्या चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, right? So how do you see the जो नए ऐसे movements जो हो रहे हैं social sector में, sometimes it's a new thing, like, you know, every 5 years it's a new thing. Now you have to adopt into your regular programming, right? Climate will become one, something else will become one, and often the base of your work remains, it looks like, untouched by what you really want to do. But it seems like sometimes a narrative or a framing becomes necessary. So I'm almost curious, like, does the mentoring framing or the narrative seem redundant, not relevant maybe, or does it seem like it's just giving a language to something in a very honest way? I'm curious about that. बिल्कुल, मैं थोड़ा ट्रांसलेट करती हूँ. Yes. और यहाँ पे ऑफ कोर्स नकुल यू सॉर्ट ऑफ, तो यहाँ पे, एंड करेक्ट मी इफ आई हैव गॉट इट राइट, तो अरुंधति बहुत ही एक रेलेवेंट सवाल पूछ रही हैं कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं वो एक बहुत ही लंबे लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हमें फ्लेवर ऑफ द सीजन लाना पड़ता है ना, क्लाइमेट चेंज या यूथ एक्टिव सिटीजन या डिजिटल एम्प्लॉयबिलिटी. तो क्या मेंटरिंग भी एक नैरेटिव है कि आप लोग हमेशा से ये जानते थे कि ये मेंटरिंग का भी नैरेटिव क्या आपके काम में एक नया मोड़ ला रहा है, जहाँ आप कह रहे हैं अच्छा ये भी क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रेजिलियंस की तरह मेंटरिंग है, क्या ये भी हो रहा है? तो रितेश आप बात करना चाहेंगे, बिकॉज वी स्पोक अबाउट दिस, एंड वो पिज्ज़ा वाला बात आप बताना. हाँ, पिज़्ज़ा तो एक है, मतलब वो बात भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, मैं उसको भी कोट करता हूँ. मेंटरिंग एक्चुअल में किसी प्रोग्राम का एक साइड एक्टिविटी है. आज तक मेंटरिंग खुद एक प्रोग्राम कभी नहीं दिखाई देता. पहले किसान कोई मुद्दा नहीं था तो किसान की हालत बेकार थी, अभी मुद्दा है तो गवर्नमेंट एक्नॉलेज करती है. जैसे एजुकेशन कोई इशू नहीं है पेरेंट्स के बीच में, अमंग द कम्युनिटी कोई आंदोलन क्रांति नहीं होती है उसको लेके, जिस दिन इशू बनेगा उस दिन उसमें भी क्रांति होगी. ऐसे मेंटरिंग मेन स्ट्रीमिंग प्रोग्राम ही नहीं है वो. बहुत अब हम कह रहे हैं, लोग कहते हैं ट्राइबल को तुम मत ये मेंटरिंग वगैरह शब्द मत बोलो. हम कहते हैं क्यों नहीं बोले, हम कुछ शब्द तो बोले कम से कम. तो बोलते क्यों बोलना है, तो हम कहते हैं भाई वर्ड्स ट्रैवल करते हैं. सपोज जब हमारे सारे ट्राइबल्स पिज़्ज़ा खा रहे हैं और बहुत शौक से खा रहे हैं वहाँ पे, अभी चालू हुआ 5 साल से,
पर 10 साल पहले हमने भी नहीं सुना था पिज़्ज़ा, हमें भी नहीं पता था, पर वो आया तो टेस्ट पता चला और लोगों ने खाया। मेंटरिंग के अंदर बहुत सारे शब्द हैं। मेंटरिंग को एज वैल्यू अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर को क्रिएशन है, कोलैबोरेशन है, एम्पैथी है, उसका ट्रैवल करना बहुत जरूरी है अमंग द कम्युनिटी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इस तरह की बातें हैं कि नहीं करना चाहिए ये शब्द या फ्रेम में नहीं लें, मुझे लगता है बाइनरी नहीं है, कहीं फ्रेम जरूरी है, कहीं उसका ऑर्गेनिक होना जरूरी है, और वो मेन स्ट्रीम प्रोग्राम की तरह इंडिया में कोई मेंटर पूल दिखाई नहीं देता। मेंटर पे कोई, हम बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग करते हैं। सिर्फ हमने एक प्रोग्राम करा है जो मेंटर ड्रिवन प्रोग्राम था, उसमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नहीं थे ना प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था, वो मेंटर से चलता था और मेंटर ही रेफरेंस से उसमें फेलोज भेजते थे और मेंटर ही उसको को क्रिएट करते थे। तो हमसे फंडर ने पूछा कि ये मेंटर वाला क्या कॉन्सेप्ट है आपका, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं है? उनका करके देख रहे हैं, आप देखो अगर लगता है ठीक तो आगे बढ़ाएंगे। तो वो अभी बड़े स्केल पे गया है वो प्रोग्राम। और कोई प्रश्न? So quick request that if you can join the workshops tomorrow and conduct them. So on the questions, question 2, जैसे कुछ करिकुलम, जैसे आपने कहा कि जैसे कुछ पेन्स होती हैं सोसाइटी में, आपने भी कहा, तो पेन से एक तरह से जो तपस होता है उससे पर्पस पता चलता है आदमी को। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसी स्पेस होल्ड करें, जैसे आपने बताया कि स्पेस होल्ड करना चाहिए। तो एक करिकुलम मैंने बनाया है, जैसे जो जर्नी में लेके जाते हैं सबको। इट्स बेसिकली फोकसिंग ऑन द राइट स्पेस दैट यू क्रिएट, जिससे वो राइट क्वेश्चंस के लिए इन्वायरमेंट बनता है मेंटर और मेंटी के बीच में। फिर क्वेश्चन से वो रीडिफाइनिंग ऑफ सक्सेस होता है कि सक्सेस हमारा है क्या। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब हमने समझना शुरू किया, लेकिन सक्सेस क्या। सो ऐसा कुछ अगर आप बनाना चाहें तो आई एम विलिंग टू पार्टनर ऑल्सो, यू नो, पुट इन मेनी आवर्स टू दिस। तो कह रहे कि आप ऐसा कुछ बनाना चाहें तो वो आपको हेल्प करेंगे अगर ये करिकुलम। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मैंने मच पहले फॉर द ही कोलैबोरेशन। सबको आह्वान किया था कि मैं बात तो रखूंगी अपनी, शायद कम टाइम है, ज़्यादा बात नहीं रख पाऊंगी, लेकिन जितनी भी रख पाऊंगी, अगर आपको समझ में आता है तो आप किसी न किसी तरह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हम ही सारे 1 लाख लोगों से पूरे देश में कैसे फैल सकते हैं ये भी देख सकते जैसे हैं। वीडियोस बन सकते हैं, एआई जनरेटेड हिंदी में बिल्कुल बिल्कुल टास्क्स बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, हाँ। रितेश जी से है, आई थिंक अभी कॉन्वर्जेशन जैसे सुन रहे थे, जो सेल्फ इंटेंडेड मेंटर पुल की बात आप कर रहे थे, हम सुबह से थोड़ा बातचीत कर रहे थे जहाँ पे क्वालिटी और ट्रस्ट और सेफ्टी के बारे में बातचीत चल रही थी। तो अगर मेंटर पुल बनना है या एज अ मेंटरिंग कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस बनना है, तो उसमें ट्रस्ट और क्वालिटी एंगल का हम कैसे देख सकेंगे? आपने जो मेंटर पुल किया था, तो उसमें हाउ डिड यू ब्रिंग ये एस्पेक्ट्स, कैसे उभर आए थे, ये बता सकते हैं? तो क्वालिटी का इंडेक्स मुझे लगता है अभी बहुत एक्सप्लोर करने की जरूरत है मेंटरिंग को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और जगह दूसरे नेशन में, मतलब हम जर्मनी में बहुत इजीली देख पाते हैं काइंड ऑफ मेंटरिंग क्या है, क्योंकि वहाँ पे सिटीजनशिप और उनका जो फ्रेमवर्क यहाँ बहुत ही डाइवर्स है। तो हमें एक तो इंडेक्स शायद देखना पड़ेगा कि मेंटर की, और उसमें भी रूरल के कॉन्टेक्स्ट में, इंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में, स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में, वुमन जेंडर के कॉन्टेक्स्ट, सबका क्वालिटी अलग। पर जो मुझे प्राइमरी कुछ क्वालिटी दिखाई देती हैं, को क्रिएट करना, और हम कई बार सुबह से बात कर चुके हैं, लिसनिंग, एम्पैथी, ये तो है ही। पर अगेन कोलैबोरेशन बिटवीन द टू माइंड्स, टू सोल, टू थॉट्स, टू आइडियाज, वो शायद एक प्रिंसिपल है जहाँ पे कोलैबोरेटिवली आप साथ आते हैं। हाँ, आई थिंक कम समय में यही हो सकता है। थैंक यू। सो आई डू नो कि बहुत कुछ ये तो बातों का सिलसिला चलता रहेगा, बट टाइम अप हो गया है। और थैंक यू मनीषा, रितेश एंड नकुल। आप लोगों ने एक चीज़ जो बिल्कुल क्लैरिटी से यहाँ पे हमारे सामने लाए, वो ये है कि मेंटरिंग एक लॉन्ग टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है ना। तो वो प्रोजेक्ट के तहत चले, प्रोजेक्ट के बाहर चले, लेकिन वो मेंटर मेंटी का जो एक रिलेशनशिप है, वो दो लोगों का एक इक्वल बराबरी का रिलेशनशिप है। वो कोई प्रोजेक्ट टाइमलाइन में नहीं बैठता,
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे आपने बताया मनीषा, कि मूवमेंट्स को अगर हमें बढ़ाना है अपने बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल पर, तो mentoring is the way forward, right? So just on that note, thank you very much, everybody. And thank you, Manisha, Ritesh, and Nakul. And thank you, Mentor Together, for giving us the space to sort of really get stories from very far away into this space. Thank you very much. Thank all panelists for this engaging conversation that has redefined the power of mentoring in shaping stronger, more resilient community-based organizations. Please do accept a small token of our appreciation. Thank you all once again. We will now take a quick break. So we will be back within 15 minutes. So before 5 o'clock, let's make sure we are here. And tea and coffee are served both in the ground floor and first floor foyers.